ਸਾਹਿਬ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਇਆ 9। ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਪਛਾਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਣੇ ਕੁਲੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੂਟਕੇਸ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਰਸ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸਮਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਤਾਉਣਗੇ ਹਮਦਰਦੀ। 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੌਂਪਣਗੇ ਚੈੱਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 536ਵੇਂ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਟਾਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਬਰਾਤ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸੰਗਤ ਭਰ ਰਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। यानी कि समझना होएगा खबर नूं कि आखिरकार किहड़े सैलानी आ कह लीए कि वसिंदे जिहड़े ने ओह सफर नहीं कर सकणगे, जिहड़े भारती कैनेडा दे विच रहिंदे ने और उन्होंने भारत आउणा सी, भावें किसी सूबे दे नाल भी संबंधित ने, भावें पंजाब तो ने, भावें हरियाणा तो ने, तां ओह हजे 21 सितंबर तो लैके वीज़ा अपलाई नहीं कर सकणगे। अस्थाई किस्म की रोक लगी है, यानी कि फिलहाल दे लई रोक लगाई गई है। तां वड्डी खबर है उन्हां लोकां दे लई जिहड़े कि कैनेडा च रहिंदे ने पर भारत दे ने, पंजाब तो ने, तां उन्हां ने आउणा सी किसी भी, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ परिवार दे नाल संबंधित ने, NRI लोक ने, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ NRI ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी और विस्तार से समझाएं किस तरीके से वीजा स्ट्राइक नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच में, दोनों देशों के बीच में, जिस तरह से दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को जिस तरह से सस्पेंड किया गया था पिछले कुछ दिनों पहले, और उसी बीच में जिस तरह से एक बड़ी खबर आई है, जिस तरह से वीजा सेवाओं का निलंबन की जो एक जानकारी मिली है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो काफी अब बढ़ गया है। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि कनाडा के नागरिक हैं, उनके लिए जो वीजा सेवा को फिलहाल अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। और जिसके बीच ये खबर जो है काफी इंपॉर्टेंट आ गई है। और जिस तरह से कनाडा का जो वेबसाइट है उस पर एक मैसेज पोस्ट किया गया है और उस संदेश में लिखा गया है कि भारतीय मिशन से महत्वपूर्ण सूचना, परिचालन कारणों की वजह से गुरुवार यानी कि आज 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं का अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। यानी इसका मतलब साफ है कि एक बहुत बड़ी एक खबर है। हालांकि इस मामले पर अभी तक भारतीय अधिकारियों के द्वारा भी कोई भी औपचारिक तौर पर पुष्टि भी नहीं की गई है, उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से टिप्पणी की गई है, जिस तरह से पोस्ट लिखा गया है, जिस तरह से उसका मतलब साफ होता है कि भारत और कनाडा के बीच में जो तनाव की स्थिति किस तरह से खराब हुई है। हालांकि जिस तरह से शंकर, जो कनाडा से आना चाहते हैं भारत के लोग, वो नहीं आ पाएंगे फिलहाल 21 सितंबर के बाद, अभी के लिए खबर ये है। एकदम आपने सही कहा है। इसका मतलब साफ है
कि फिलहाल जो वीजा जो जैसे अगर भारत से कोई भी नागरिक कनाडा मुल्क का आदमी अगर भारत आना चाहता था तो अब वो नहीं आ सकता है। और कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से दोनों देशों के बीच के जो एक स्थिति की अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले एक खालिस्तान मुल्क के एक जो टेररिस्ट है बकायदा जिस तरह से उसकी हत्या हुई वहां पे, लेकिन जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह से बकायदा इस मामले में बयान दिया गया, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जो आरोप है भारतीय एजेंसी पे लगाया गया। हालांकि ये जो खबर है इस खबर को साफ तौर पे इनकार किया गया और कहा जा सकता है कि उसके बाद जो स्थिति है लगातार बढ़ती गई और एक तरह से कहा जा सकता है कि कनाडा के तरफ से जिस तरह से वहां से औपचारिक तौर पे बयान दिया गया, वहां के संसद में जिस तरह से इस मामले पर चर्चा की गई और जिस तरह से वहां के सीनियर मंत्री जो है आरोप लगा रहे हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उस आरोपों के बाद में जिस तरह से ये एक कार्रवाई हुई है और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले ही दोनों देशों के डिप्लोमेट ने शंकर, अगर इस फैसले को देखा जाए तो किस संदर्भ में लिया जाए? क्या इसको माने कि सुरक्षा के आधार पर ये फैसला लिया गया है या फिर भारत खासा ही नाराज है कनाडा से? देखिए, नाराजगी तो भारत की बनती है क्योंकि भारत जिस तरह से कनाडा में अगर कहें तो भारत के पास काफी ऐसे महत्वपूर्ण सबूत हैं। भारत के जो खुफिया एजेंसी भारतीय जांच एजेंसी के पास काफी ऐसे सबूत हैं जिसके प्रमाण जो है कई बार कनाडा को दिया जा चुका है कि किस तरह से कनाडा में कई आतंकी, कई ऐसे टेररिस्ट, कई ऐसे जो गैंगस्टर्स जो हैं वहां पर रहते हैं और वहां पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और खास तौर पर खालिस्तानी आतंकियों की अगर बात करें तो भारत में उन संस्थाओं को प्रतिबंधित किया गया है जिसका कनेक्शन सीधे तौर पे कनाडा से जुड़ता है और वहां से जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है और कई ऐसे गैंगस्टर के अगर नाम की हम चर्चा करें तो अभी 40 से 42 ऐसे गैंगस्टर्स की लिस्ट जो है पिछले कुछ समय पहले एनआईए के द्वारा बनाया गया था और उसके बारे में औपचारिक तौर पे जानकारी कनाडा प्रशासन को दी गई थी और बताया गया था कि इन तमाम आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। खास तौर पर यह अभी का मामला नहीं, अभी पिछले कुछ समय पहले की बात बताएं जिस वक्त में राजधानी दिल्ली स्थित लाल किला पे जो वहां पर किसान आंदोलन के समय में कई ऐसे लोग जो जिस तरह से वहां पे प्रवेश किए थे किसानों के आंदोलन, और उस वक्त में भी कई ऐसे लोग का नाम सामने आया था जो कनाडा में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले कई सालों से कई ऐसे गैंगस्टर, कई ऐसे आरोपी जो कनाडा में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और भारत उन आरोपियों के खिलाफ जब कार्रवाई की बात करता है तो अगर कनाडा के लोग, कनाडा के जो मंत्री हैं, कनाडा की जो सरकार है, अगर वो नाराज होती है तो भारत का जो गुस्सा है वो अपने आप पे जायज बनता है। और इस मामले पे जिस तरह से अगर वीजा से संबंधित जो एक वीजा सेवाओं के निलंबन से संबंधित जो मामला सामने देखने को मिला है तो ये मामला बेहद अब रोचक हो गया है और इस मामले पर थोड़ी देर के बाद संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पर। समझना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से भारत की कनाडा में कह सकते हैं वीजा स्ट्राइक है, वहां के लोग अभी के लिए भारत नहीं आ सकेंगे, क्या कुछ समझा जाए? जी देखिए, भारत की जो नाराजगी है वो बेहद स्वाभाविक है और साथ ही साथ जो भारत की चिंताएं हैं वो भी बहुत स्पष्ट हैं। कनाडा में जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं वो लगातार चल रही हैं और कनाडा की सरकार से भारत की सरकार के द्वारा लगातार ये रिक्वेस्ट की गई कि आप जो है वहां पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज के ऊपर स्थित कार्रवाई करके दिखाएं, जो कि कनाडा की सरकार ने नहीं किया और उल्टे अब कनाडा की सरकार भारत की सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है कि जो हरदीप सिंह निज्जर की किसी कारणों से जो उसकी हत्या हुई उसमें भारत का हाथ है वगैरह करके। तो ये जाहिर है कि भारत ने इसको जो है स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है और भारत सरकार इससे जाहिर है कि एक अपनी नाराजगी भी व्यक्त करते हुए वहाँ के कनाडा के जो हाई कमिश्नर है उनको तलब किया गया और जिस तरीके से हमारे एक डिप्लोमेट को कनाडा ने बहिष्कृत किया था, हमने भी एक डिप्लोमेट को बहिष्कृत किया है और जाहिर है कि ये जो संबंध है ये तनावग्रस्त है। देखिए, और ये जो भारत कदम ले रहा है वो हमारे अपने राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बेहद आवश्यक है कि भारत
सरकार जो है इसको लेकर के अलर्ट रहे। इसी वजह से हमने अपने नागरिकों को एडवाइजरी भी जारी की है कि वहाँ पर वो सतर्क रहें, क्योंकि वहाँ पर अनेक आतंकी, अतिवादी, जो टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वहाँ एक्टिव हैं। और कनाडा की सरकार चूंकि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए सतर्कता आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि ये जो कार्रवाइयां हैं, भारत की नाराजगी तो है ही, साथ ही साथ भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए और कनाडा में हो रही जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए ये जो वीजा है उसका सस्पेंशन किया गया है। संजीव जी, ये भी समझना चाहेंगे क्या संदर्भ से समझा जाए इस फैसले को और असर किन पे पड़ने वाला है और किस संदर्भ में देख सकते हैं कि वजह क्या है बेसिकली, क्योंकि पिछले दिनों एडवाइजरी भी भारत ने जारी की अपने नागरिकों को। हालांकि कनाडा ने साथ में कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद और अतिवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ कार्य करता है और हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हैं, उसे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यदि हम ये स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कनाडा में एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रही हैं, वहाँ पर हिंदू मंदिरों को वेंडलाइज किया जा रहा है, हमारे राजनयिकों के पोस्टर निकाल करके उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और अनेक वहाँ रैली, धरने, प्रदर्शनों के माध्यम से वहाँ पर हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जिस तरह से मारते हुए झांकी में दिखाया गया और अनेक तरीके के जो भारत विरोधी वहाँ पे धमकियां दी जाती हैं रैलियों में, तो उससे बहुत स्पष्ट है कि कनाडा में भारत विरोधी एलिमेंट्स एक्टिव हैं और कनाडा की सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी वजह से भारत ने एडवाइजरी भी जारी की कि वहाँ पर जो मुट्ठी भर जो इस तरीके के लोग हैं जो खालिस्तान समर्थक हैं, आतंकी हैं, उनसे वहाँ की जो हमारी जो बड़ी सिख आबादी है या हमारा जो पूरा इंडियन डायस्पोरा है वो सतर्क रहे। और अब जो भारत सरकार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी ये जो वीजा का सस्पेंशन है उसको किया गया है और कनाडा सरकार से हमने जाहिर है कि सख्त नाराजगी व्यक्त की है कि जिस तरीके से कनाडा ने हमारे ऊपर ही आरोप लगा दिया। कनाडा को एक तरफ जहां कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई न करके उसने अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार, जाहिर है कि अल्पमत की सरकार होने की वजह से वो एक कुछ मुट्ठी भर लोगों को जो आतंकी, अतिवादी, खालिस्तान समर्थक हैं उनको अपीच करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए कार्रवाई की है। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के आधार पर भारत और कनाडा के रिश्तों को तोड़ने की वो कोशिश जो कर रहे हैं वो बेहद गलत है। संजीव जी, अब इंतजार करें कि कनाडा इस पे क्या रिएक्ट करता है और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ आगे, क्योंकि बहुत अच्छे रिश्ते अभी तक रहे हैं, बेशक वो व्यापार को लेकर देखा जाए या फिर जिस तरीके से इमिग्रेट होते हैं यहाँ के लोग वहाँ पे, तो अभी आगे क्या असर डलेगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही गहरे हैं, प्रगाढ़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों विश्व के दो बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, दोनों के साझा मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां हैं। और हमारा जो वहाँ पर 1.4 मिलियन का 14 लाख की जो भारतीय की आबादी है, जिसमें कि सिख आबादी की बात करें तो ये 7.5 लाख से ज्यादा हमारे सिख भाई बहन हैं और वो सभी भारत और कनाडा के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, भारत को और कनाडा को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कि अलगाववाद की जैसी आतंकवादी और अतिवादी सोच रखते हैं और वो तथाकथित खालिस्तान के समर्थक हैं और जाहिर है कि ऐसे कुछ लोगों की वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव आता जा रहा है। और जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो अल्पमत में होने की वजह से वो ऐसे लोगों के प्रभाव में आ गई है जो कि गलत है। इसका देखिए आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चूंकि सरकार अल्पमत की है और जगमीत सिंह और उसकी जो पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन जस्टिन ट्रूडो को हासिल है, इसलिए जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार को बचाने के लिए इस तरीके की अपीचमेंट की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर दे संजीव जी, क्योंकि दबाव बनाया गया था, अमेरिका को भी बोला गया था कि वो जनतक तौर पर इस मर्डर की निंदा करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो अभी अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो कनाडा बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहा है इस मुद्दे पर, क्या कुछ माना जाए? देखिए, ये जो कनाडा की तरफ से जो आरोप भारत के ऊपर लगाए गए हैं ये बेसलेस आरोप हैं, आधारहीन है, इनका कोई आधार नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, एब्सर्ड है। और इस तरीके के जो आरोप लगा करके कनाडा की प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी अदूरदर्शिता को, अपरिपक्वता को, इमेच्योर ये है और ये तरीके का स्टेप है उनका। वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए भारत और कनाडा जैसे बड़े संबंधों को दांव पे लगा रहे हैं और वो ये बहुत गलत कदम उठा रहे हैं। इसको अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, जो 5 आइज की बात की जाती है, या उनके अन्य अलाइज ने भी उनको इस बात को अवश्य समझाया होगा
कि वो भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र और विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तथा जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो भारत का इतना बड़ा प्रभाव है और चाइना जैसे राष्ट्र से अगर हमें मुकाबला करना है तो लोकतांत्रिक राष्ट्रों को साथ में आके काम करना पड़ेगा। तो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को अवश्य इस तरीके की सलाह उनके एलाइज के द्वारा दी गई होगी कि भारत जैसे एक जिम्मेदार राष्ट्र के साथ वो अपने रिश्ते खराब न करें, ये उनके लिए अच्छा होगा। इसी वजह से आपने देखा कि अगले दिन वो जस्टिन ट्रूडो का बयान आया कि वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। तो उनके टोन कुछ बदले इसकी वजह ये भी माने कि इंडो कैनेडियन जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है या नहीं, क्या कुछ समझते हैं संजीव? देखिए, इंडो कनाडा ट्रेड के ऊपर तो इसका असर पड़ ही चुका है। देखिए, एक ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा था सीपा को लेकर के, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, उसको अभी स्थगित कर दिया गया है। और कनाडा और भारत के बीच में ट्रेड की जो अपार संभावनाएं हैं, जो कि अभी बहुत कम स्तर का ट्रेड होता है, देखा जाए तो 8 से 10 बिलियन डॉलर के बीच का जो ट्रेड होता है, ये दोनों देशों के जितने बड़े संबंध हैं उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है और उसको बढ़ाने की आवश्यकता थी। और उसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करने के बजाय उन्होंने भारत से अपने रिश्तों को खराब करने का जो एक कदम उठा लिया है, वो जाहिर है कि कनाडा के लिए भी बहुत नुकसानदायक होगा। और पूरे विश्व में जो आतंकवाद और अतिवाद को लेकर के जो लड़ाई चल रही है, जो वैश्विक संघर्ष चल रहा है, उसको भी कमजोर करने का काम करेगा। एक बात मैं और कहूंगा कि इस तरीके के आतंकवादी अतिवादी तत्वों को यदि कनाडा अपनी धरती पर शरण देता है, उसे सपोर्ट देने का काम करता है, चाहे वो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए ही क्यों ना हो, तो ये कनाडा की समाज के लिए भी बहुत घातक साबित होगा। इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये कहीं भी किसी भी समाज के लिए घातक साबित होते हैं और ये कनाडा की सरकार नहीं समझ पा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले जो अगले इलेक्शंस होंगे, उसमें जब कोई नई सरकार आएगी तो उसके बाद से हम अपेक्षा ये कर सकते हैं कि संबंध और बेहतर होंगे। लेकिन वर्तमान समय में इस सरकार का जो चरित्र है, जो स्वरूप है, जो अल्पमत का इसका स्वरूप है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी ये जो तनाव है वो आने वाले समय में बना रह सकता है। हालांकि यही सवाल, इसी से सवाल जुड़ा है संजीव जी मेरा अगला, कि वीजा स्ट्राइक, वीजा की पाबंदी कब तक ये आगे जारी रह सकती है? और इसमें एक अगर ऐड ऑन कर दे, क्योंकि बहुत सारे पंजाबी हमारे यहाँ से गए हैं और वो लोग, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि वो चिंतित होंगे, और जिन्होंने जाना है, खास तौर पर जिन्होंने वीजा अप्लाई करना है, स्टूडेंट है, किसी भी तरह का वीजा लेना चाहते हैं, तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा अभी उनके दिल में यही सवाल जुड़ा हुआ है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारत और कनाडा के संबंधों में इस तरीके के जो आरोप कनाडा की तरफ से लगाए जाने के बाद इसमें एक गहरा तनाव अवश्य आ गया है। लेकिन हमारे जो भाई बंधु हैं, वहाँ पर जो भाई बहन हैं, उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो सतर्क अवश्य रहें। जो हमारी एम्बेसी है ओटावा में, या हमारे जो काउंसलेट्स हैं, जहाँ कहीं भी वो हैं, वो अपने एम्बेसी और काउंसलेट से संपर्क में रहें। और जो लोग वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारियों को जारी रखें, उसमें कोई वो रुकावट न रखें। लेकिन जहाँ तक संबंधों की बात है, तो इस संबंधों में वर्तमान समय में एक तनाव है और कनाडा में जाहिर है कि अनेक जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रही हैं, तो उसको लेकर के एक सतर्कता आवश्यक है। लेकिन पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। मैं ये अवश्य कहूंगा आपके दर्शकों को कि वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो पैनिक होकर के कोई निर्णय लें, और अपना निर्णय वो जैसा वो तैयारियां कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पे जाने की, अपनी शिक्षा के लिए या व्यापार के लिए या अन्य बसने वगैरह के लिए, तो उसके लिए वो अपनी प्लानिंग को करें, लेकिन सतर्क रहें, लेकिन परेशान ना हो, पैनिक ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी न्यूज़ 18 पंजाब के साथ जुड़ने के लिए। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार साढ़े नाल फोन लाइन से, और उन्होंने सुभाविक तौर पर सारा ही डिटेल दे विच दस्सिया है कि आखिरकार इस ਵੇਲੇ ਦੀ स्थिति ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ देख सकते हैं। पर किते ना किते जो वीज़ा सेवावां सस्पेंड कीतियां गईयां ने, क्योंकि फिलहाल की गल की जाए तो अस्थाई रोक लगी है। कैनेडा के नागरिकों को भारत दा वीज़ा जिहड़ा है वो नहीं मिलेगा, यानी कि जिहड़े लोग कैनेडा दे विच रहिंदे ने, भारत आउणा चाहुंदे सन और उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना सी, पर फिलहाल दे लिए अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, उस ते रोक लगी है। क्योंकि जिस तरीके दे नाल हालात पिछले दिनों दे विच बने, तलखी जिहड़ी है वो वेखण नूं मिली है, तां जिस तरीके दे नाल ये हालात हुण बने ने, तां सीधे तौर ते असर पै रहा है उन्हां लोकां ते जिहड़े आउणा चाहुंदे सन भारत। पंजाबी खास तौर ते वड्डी गिनती है पंजाबियां दी जिहड़े कि कैनेडा दे विच इस वेले वसदे ने और समय समय ते अपने परिवारां दे कोल आउंदे ने, और किते ना किते कईयां दे परिवारां दे विच वड्डे प्रोग्राम हुंदे ने विआहां दे, तां होर सारियां चीज़ां, सो वो वीज़ा लैना चाहुंदे सन, पर फिलहाल दे लई रोक लगी है। तां वड्डा असर सुभाविक तौर ते
पै रहा है और पवेगा। तो सीधा रुख करांगे, मेरे सहयोगी पंकज कपाही लाइव मौजूद ने। पंकज, की समझा जाए एक वड्डा फैसला और जिस तरीके दे नाल पिछले 3-4 दिन तो लगातार तलखी असीं कह सकते हैं कि वधदी ही जा रही है। निश्चित तौर पर, क्योंकि भारत पहली बार है कि इन्ना करड़ा रुख अपना रहा होवे, क्योंकि ये मसला कोई नवा मसला नहीं है। जिस तरीके दे नाल कैनेडा दे विच जो खालिस्तानी एक्टिविटी हुंदी है या भारत विरोधी एक्टिविटी हुंदी है, उस नूं लैके नाराजगी लगातार जताई जाती सी, लगातार इतराज जाहिर किया जाता सीगा। लेकिन ये पहली बार है कि एक तो बाद एक एडे सख्त ते अहम फैसले जिहड़े है वो भारत सरकार के वलों लिते जा रहे हैं। और जिस तरीके दे नाल, क्योंकि ये जिहड़ा सितंबर तो लैके फरवरी तक के महीने हुंदे ने, सब तो ज्यादा पंजाबी जिहड़े कैनेडा के सिटीजनशिप है जिन्हां दे कोल है, लेकिन भारत दे विच अपने रिश्तेदारां नूं मिलण आंदे ने, मौसम चंगा हुंदा वै तां उन्हां नूं किते ना किते दिक्कतां दा सामना करना पै रहा वै हुण, क्योंकि उन्हां नूं हुण वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि कदों तक इससे पाबंदी रहेगी, ये अजे क्लीयर नहीं हो पाया कि एक हफ्ता पाबंदी रहेगी या किन्ने दिन पाबंदी रहेगी, ये अजे क्लीयर नहीं हो पाया। इस दे नाल सब तो वड्डी चिंता ये भी उठनी शुरू हो गई है पंजाब दे विच रहिंदे लोकां दे लई जिन्हां दे बच्चे कैनेडा दे विच पढ़दे ने। उन्हां नूं लैके कोई गाइडलाइन तो नहीं सरकार वालों जारी की जाएगी या उन्हां नूं लैके कोई फैसला तो नहीं जारी किया जाएगा। ये हुण न्यूज़ 18 दे कोल भी कई सारे पंजाब च वसन वाले लोगों के सवाल आने शुरू हो गए ने, लेकिन भारत सरकार ये क्लीयर कर रही है कि खालिस्तान एक्टिविटी या भारत विरोधी एक्टिविटी कैनेडा दे विच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई कैनेडा, क्योंकि कल ही जस्टिन ट्रूडो जिन्हां दी जिहड़ी सरकार है उत्थे, उन्हां दे साबका मैंबर पार्लीमेंट जो 2015 तो लैके 2021 तक रहे ने, रमेश्वर संघा, उन्होंने बड़ा खुल के न्यूज़ 18 ते गल की। उन्होंने कहा कि 7 तो 8 अजिहे MP ने जिहड़े खालिस्तान एक्टिविटी या उन्हां दे समर्थकां नूं सपोर्ट करते हैं, उही जस्टिन ट्रूडो नूं उस तरीके नाल किते ना किते उन्हां दा एक वड्डा प्रभाव रहिंदा वै। और दूसरा यह भी सवाल है कि 2025 दे विच कैनेडा दे विच इलैक्शन होने ने, तां की इसे दे मद्देनज़र कैनेडा इस तरीके का रुख अपना रहा है, यह भी समझण ते सोचण दी लोड़ है। दूसरा यह भी है कि रमेश्वर संघा ने बड़ियां अहम गल्लां कीतियां, क्योंकि जो रमेश्वर संघा नूं हटाया गया तो उन्होंने ये इल्जाम लगाए कि मैं क्योंकि कैनेडा दे विच रह के जस्टिन ट्रूडो नाल सीधा जिहड़ा वै वो इस गल नूं लैके इतराज जाहिर करता सी कि इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो मैनूं बाहर का रस्ता दिखा दिता गया। तो हुण ये सवाल उठ रहा है कि जिहड़ी तलखी ते जिहड़ी जिस तरीके दे नाल एक दूसरे दे उत्ते वार पलटवार एक्शन दा रिएक्शन हुंदा जा रहा है दोवें मुल्कां दीआं सरकारां दे विचाले, तां आम पंजाबी किते ना किते इस गल नूं लैके चिंता जरूर जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, वापसी करांगे। तो वड्डी खबर एक होर है, कैनेडा च वसदे हिंदुआं ने खुद नूं खतरा दस्सिया है। हिंदू फॉर्म कैनेडा दे दस दईए कि PM ट्रूडो नूं चिट्ठी लिखी है। पब्लिक सेफ्टी मंत्री डोमिनिक लेब्लैंक ने भी पत्र लिखा गया है। अतवादी पन्नू की धमकी नूं नफरती अपराध मनण की मांग की गई है और कुछ खालिस्तानी अंसर धमकियां दे रहे हैं। हिंदू फॉर्म ने यह भी लिखा है ये कैनेडियंस की सुरक्षा नूं प्रभावित करन वाला है, खास विचारधारा वाले लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं। तो यह भी बड़ी खबर है और किते ना किते जो तरीके दे नाल जिस तरीके दे नाल इस वेले तलखी है तो उस दे विचाले बेहद प्रभावित कर दी है। सीधा रुख करते हैं पंकज दा। पंकज, हिंदुआं ने खतरा दस्सिया है, कैनेडा च जिहड़े हिंदू ने उन्होंने लगता है कि उन्होंने हुण खतरा है, उन्होंने बकायदा एक चिट्ठी लिख दी है। देखो, क्योंकि इस तरीके की इनपुट कितना किते मिली है और उस तो बाद ये चिंता जिहड़ी है वो जाहिर की गई और चिट्ठी लिखी गई है, क्योंकि जो इस तरीके की सिचुएशन हुंदी है तो उस वेले गुरपतवंत सिंह पन्नू इस चीज़ का फायदा चुकना चाहता है, कितना किते डराने की कोशिश उसके वलों की जाती है। तो कई थावां ते असीं देखिया है कि जिहड़ा वै इस तरीके के स्लोगन दिते जाते हैं जो एक धर्म नूं लैके चिंता जाहिर करते हैं या नाराजगी जाहिर होंदी है। तो उसे दे मद्देनज़र कुछ इनपुट मिले उत्थों दे जिहड़े हिंदू लोग ने, तो उन्होंने हुण चिंता जाहिर की और किते ना किते अपनी सुरक्षा नूं लैके केंद्र सरकार दे नाल भारत सरकार नाल भी गलबात कर रहे हैं और दूजे पासे जिहड़ी उत्थों दी गवर्नमेंट है उन्हां दे नाल भी गलबात जिहड़ी है की जा रही है। बिल्कुल, इस वेले की बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं तो होर तलखी वधी है। तो सीधे तौर पर हिंदुओं ने अपने आप को खतरे दे विच दस्सिया है। कैनेडा च जिहड़े हिंदू रहिंदे ने, हिंदू फॉर्म कैनेडा ने PM ट्रूडो नूं चिट्ठी लिखी है। तो सीधा PM नूं चिट्ठी लिख के उन्होंने कहा है और यह भी नाल ही जिहड़ी चिट्ठी है पब्लिक सेफ्टी मंत्री नूं भी लिखी गई है कि अतवादी पन्नू की धमकी नूं नफरती अपराध
ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਸਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਲਖੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲਗਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।